Good morning, Sumitra. Good evening. Sorry. Good evening, sir. Okay, let's start. Did you like? I have uploaded this book in my folder. Did you check? Yes, sir. Okay, and also there are few other books and materials I have also uploaded. जैसे I think the complex analysis book by Zeal. It is also uploaded there. So you this book is a fine one. It has like all the notes and all. So it is written in a nice fashion, and I will largely follow this book. Hmm? Okay. Okay. Curves, contours, and okay. Okay. I will before our aim will be this chapter, learning this chapter. Okay, I will discuss which chapters we need of this book. See, up you we have already discussed what is analytic functions, right? Analytic functions we have already discussed. Now this elementary functions, chapter 8, 9, 10, 11 is for self study. I will not discuss them. Okay, next in today in today I will try to discuss about these curves, contours, and simply connected domains, then complex integration, independence of path. Let's first I will try these three theorems, and if time permits then I will discuss Cauchy-Goursat theorem. Okay, so these four chapters is belongs to the integration in complex plane. Okay, and then there are the 17, 18, 19, which are also 20. These are also important things. Cauchy's integral formula, Cauchy's the fundamental theorem of algebra. And the next class possibly we will discuss this 21, 22, 23, 24, 25. That means this is this is called I think sequence and series of numbers, sequence and series of functions, power series, Taylor series, and Laurent series. Okay, so these are actually just say in real analysis we had Taylor series, Maclaurin series. Here also we have Taylor series and Laurent series. So we will discuss them one by one. So today I am happy to cover this path, first chapter 12 about curves, contours, and simply connected domains, and then complex integration, if time permits, then independence of path and Cauchy-Goursat theorem. Okay, so what does this chapter about? I will just briefly discuss. Here it is very nicely written. So what is in lecture 12? We collect a few items that are used repeatedly in complex integration. We also state Jordan's curve theorem, which seems to be quite obvious. However, its proof is rather complicated. In lecture 13, we introduce integration of complex value along a directed contour. We also prove an inequality that plays a fundamental role in our later lectures. It is called ML inequality. In lecture 14, we provide conditions on functions so that their contour in integral is independent of path joining the initial and terminal points. That is through Cauchy-Goursat theorem.
This result in particular helps in computing contour integrals rather easily. And then integral, in lecture 15 we prove that the integral of an analytic function over a simple closed contour is 0. So these are our main course objective, complex analysis. And this, that just remember this, in lecture 15 we proved that the integral of an analytic function over a simple closed contour is 0. This is one of the fundamental theorems of complex analysis. Okay, without a delay, let's proceed. In this lecture we define a few terms that will be used repetitively in complex integration. We shall also state Jordan's curve theorem, which seems to be quite obvious, however its proof is rather complicated. So I will just say that let xt and yt be continuous real valued functions defined on a comma b. A curve or path gamma in the complex plane is the range of the continuous function z from a to b to c, given by zt equal to xt plus iyt. T belongs to a comma b. The curve y begins with its initial point za equal to xa plus iya and goes all the way to its terminal point zb equal to xb plus iyb. If we write the function zt in its parametric form, that is zt equal to xt comma yt, then the curve gamma is the set of points zt xt yt. T belongs to a comma b. This set is called the track of gamma and is denoted by second bracket gamma. So let's see, this is initial point zt. We have defined some continuous functions. So this is za to zb, you are conjoining them like this. Okay, so this is a curve, right? This is the curve or path. Okay, is it clear? This curve gamma is said to be simple okay, so this curve gamma is said to be simple if for all different t1 comma t2 zt1 not equals to zt2. That means gamma does not cross itself. If gamma does not cross itself, then it is called simple. Otherwise we will not call it complex. Okay. If z for any t1 t2, if t1 t2 are different, then zt1 and zt2 will also be different. So then it is called a simple curve. Therefore, which of these is a simple curve? This is a simple curve, but this is not a simple curve, right? Because it is crossing itself. है ना? Yes, sir. Now the curve gamma is said to be closed if this za equal to zb. That means your curve initial point is actually your terminal point. Your initial point is your terminal point, and the curve is called a simple closed curve or Jordan curve if it is closed. That means it is closed and it is simple. That means a comma b अगर t1 t2 satisfy करे such that a less than t1 less than t2 less than b, then z to t1 should be never be equal to zt2. That is gamma does not cross itself except at the endpoints. So this then we call it is simple closed curve. So let z1 z2 belongs to c. Why we are dealing with these things? Because these curves, upon these curves we will do our complex integrations. Okay, for example, in real analysis we need interval on which we will usually perform integration, but in complex plane we will integrate over curves. Is it clear? Yes, sir. Okay, then
Let Z1, Z2 belongs to C be different points. The line segment gamma 1 denoted as Z1, Z2 and given by Z equal to Z1 plus T Z2 minus Z1 is a simple curve. That means this Z1, Z2 and you are just connecting it with a line. So this is a simple curve. Be careful here. Curve usually means something zigzag, but here curve means a path. A path, using that, tracking that path, you can reach to some point Z2 in the complex plane from some point other point Z1. The unit circle gamma 2 given by Zt equal to e की power it equal to cos t plus I sin t. This is a simple closed curve. Zt equal to e की power it equal to cos t plus I sin t. This is a simple closed curve. Okay, this is a simple closed curve. So this is a simple closed curve. यहाँ से आप स्टार्ट करो, फिर ऐसे करके मूव करके इधर आ जाओ, क्योंकि आपका Z0 इक्वल टू Z2 पाई है. सो दैट्स व्हाई इट इज ए क्लोज्ड कर्व. और ऑल्सो डिफरेंट फंक्शंस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट सेम कर्व. You consider this function Z1t equal to e की power it, t belongs to 0 to 2 pi, and also Z2t as e की power 2 pi it, t belongs to 0, 1. So both curves trace the unit circle. Thus different function may represent the same curves. Thus different functions may represent the same curve. A curve gamma given by the range of z a to b c is called smooth if dz dt equal to dx dt plus I dy dt exists and is continuous on a comma b, and also dz dt not equals to 0 for all t belongs to a comma b. So this is the necessary, this is we call a function a curve to be smooth. ठीक है, स्मूथ पता चला ना. स्मूथ का मतलब क्या है? स्मूथ का मतलब है कि dx dt और dy dt एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए. dz dt should not vanish for all t belongs to the open interval a comma b. Now clearly the curves gamma 1 and gamma 2 are smooth. However the curve gamma 3 given by, so gamma 1 gamma 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया. तो दिस इज a smooth because if you take derivative, okay, so the derivative will not be 0, but here also derivative if you take ddt it will be I e I t. Here if you take derivative you will get z2 minus z1, so they are not 0. So this is a smooth curve, but if we define something like that, the curve gamma 3 given by zt equal to t plus 2ti and t plus 2i, t equal to 1 पे यहाँ पे हमने ब्रेक कर रहे हैं. This is simple but this is not smooth. You see, this is our curve, right? And why this is not smooth? Because at the point t equal to 1 this function is not differentiable. Here if you consider at t equal to 1 पे यहाँ पे क्या आ रहा है? t equal to 1 पे अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो आएगा 1 plus 2i. लेफ्ट डेरिवेटिव लोगे तो 1 ये आएगा 1 plus 2i, और यहाँ से लोगे तो सिंपली 2i. सो दैट मीन्स 1 पॉइंट में जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. ऑल्सो फिगर से क्लियर है यहाँ पे, ये एक जो स्मूथनेस खत्म हो गया है यहाँ पे, है ना. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट ए स्मूथ कर्व. लेकिन दिस इज पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस. सो व्हाट इज पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस? zt exists and is continuous for all but finally many points of a comma b. That means zt का डिसकंटिन्यूटी हो सकता है बट ओनली इन पीसवाइज कंटिन्यूटी. का मतलब है
ZT will be continuous in most, मतलब only that will be non-continuous or discontinuous on only a limited number of points, mean finitely many points. And if C is such a point of discontinuity, then left limit and right limit should exist and also have to be finite, and at the end points the right limit t tends to a plus zt and the left limit of t minus a should also exist and finite, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. दिस इज ए पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस कर्व. जैसे देखो दिस t plus 2ti t plus 2i, this is actually continuous, it is continuous on over 0 to 2, but what is happening, this is also, so parallel satisfy हो गया है, so that is a piecewise continuous function, right? जेट पीसवाइज कंटिन्यूटी का मतलब पता चला. पीसवाइज कंटिन्यूटी का मतलब है जेट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स. It can at most miss continuity for finitely many points belonging to a comma b, and at any such point C where z fails to be continuous, both the left limit and the right limit should exist and are finite, and also at the end points right limit of the t tends to a plus zt and the left limit of t, क्योंकि a भी आपका end point है, so they should exist and finite. Now gamma is called piecewise smooth if z and z prime both are piecewise continuous. These are definition. Okay, now I will move to a what is called contour. So by saying contour we mean contour is a sequence of smooth curves such that the terminal point of gamma k coincide with the initial point of gamma k plus 1 for 1 less than or equal to k less than or equal to n minus 1. So this is a contour. This is a sequence of smooth curves, and it is clear that contour is a continuous piecewise smooth curve. This is your, so this contour upon which we will perform the integrations. और इसका रिवर्स ओरिएंटेशन लेंगे तो that will be what that will be this orientation from here to, if I move like this, then it will be the opposite contours. Its sign will be minus, we denote it with minus of gamma. See, let gamma 1 be the curve this and gamma 2 equal to this, then gamma equal to gamma 1 plus gamma 2 is a contour. See figure, this is a contour, this is smooth and this is also smooth. Only there is problem here. Okay, I will just stop here. I will not discuss too much about here. You just here in page 80 note down, you read what is we call by saying rectifiable. Only I need contour, smooth continuous piecewise smooth curve, continuous piecewise smooth curve, a contour. What is called rectifiable? Rectifiable means if the length of the curve is determinable, then it is called rectifiable. Okay, now a simple closed contour, this इसमें सारा खेला होगा आपका, ठीक है. Gamma is called positively oriented if we take the rotation in the anti-clockwise motion, and if the reverse happens then we will call it to be oriented, negative oriented or clockwise movement. Next we will say Jordan curve theorem. The points on any simple closed curve or simple closed contour gamma are boundary points of two distinct domains, one of which is the interior of gamma and is bounded. The other, which is the exterior of gamma, is unbounded. ओके, ये समझ में आया आपको क्या है? इसका मतलब है देखो, ये जो बाउंड्री पॉइंट है ना, ये बाउंड्री पॉइंट है
इसके अंदर आप एक डोमेन ले सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मान लो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर है, ओके। सो दिस अंदर एक डोमेन है, ठीक है, और इसके बाहर भी एक डोमेन है। तो जो बाहर का डोमेन है उसका भी बाउंड्री ये है, और अंदर का जो है इसका भी बाउंड्री ये है, ओके। अब देखो जो ये वाला डोमेन है दैट इज एक्चुअली इंटीरियर ऑफ दिस बाउंड्री एंड इट इज ऑल्सो बाउंडेड, और ये वाला जो डोमेन है ये गामा का एक्सटीरियर है और इट इज अनबाउंडेड। सो दिस इज ए क्वाइट ऑब्वियस थिंग, बट प्रूफ इज नॉट फार फ्रॉम बीइंग नॉन ट्रिवियल। इज इट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? इज इट क्लियर? Sumitra, is it clear? Hello? Yes, yes, sir. Anuswa, is it clear to you also? Okay. Yes, no, sir. Okay. I just take 2 minutes to get this. Okay, no problem. So Jordan curve theorem is clear. Just read it. So what I am trying to see that देखो this is your boundary. Now बाउंड्री के अंदर भी आपका एक डोमेन है और बाउंड्री के बाहर भी एक डोमेन है। सो दैट इंटीरियर इज बाउंडेड बाय द बाउंड्री एंड एक्सटीरियर इज ऑब्वियसली अनबाउंडेड, है ना। और वही यहां पे ये थ्योरम बता रहा है। वी आर थिंकिंग दैट इट इज क्वाइट ट्रिवियल, but the proof is not a easy thing to do, okay. Yes, sir. Now clear. Next देखो, next one of the thing is simply connected domain S. Simply connected domain S is a domain having the following property: if gamma is any simple closed contour lying in S, then the domain interior to gamma lies wholly in S, and immediate consequences that is that the interior of a simple closed curve is simply connected. Simply connected का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, so that straight line should entirely lie within the domain. और ये डोमेन अगर सिंपली कनेक्टेड नहीं है देन वी कॉल इट ए मल्टीपली कनेक्टेड। जैसे दिस वन इज सिंपली कनेक्टेड, राइट? बिकॉज आप कोई भी दो पॉइंट ले दो उनके बाउंड्री से, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक, दैट स्ट्रेट लाइन इज एंटायरली लाइंग इन द डोमेन। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर छेद है, ये एक्चुअली डिस्क, दिस इज द एनुलर रीजियन. वी विल यूज फ्रीक्वेंटली दिस थिंग्स, व्हाट इज एनुलर रीजियन एंड ऑल. Okay, Anuswa and Sumitra, in the next Sunday there will be no class. I will take the class on Monday. Okay, instead of next Monday, Yes, sir. Yes, sir. instead of next Sunday, उस Sunday के बाद जो Monday आएगा उसमें क्लास लूंगा. That means 9th March को क्लास लूंगा. ठीक है? Yes, sir. शाम को सर. हाँ, शाम को 6 से 8 ही लूंगा. ठीक है? Yes. क्योंकि मैं 8 तारीख को मैं हूँ नहीं इधर. मैं 8 तारीख को एक्चुअली मैं थर्सडे को IIT गुवाहाटी जा रहा हूँ. तो आई विल कम ऑन दैट डे, ऑन 8th March. So I will be on my way, on my transit from IIT Guwahati to IIT Ropar. Right, sir. Okay. So this is also not simply connected. ये भी simply connected है. देखो क्या दिक्कत आया यहाँ पे, क्यों नहीं है?
why this is simply connected? A domain that is not simply connected domain is a domain having the following property: if gamma is any simple closed contour lying in S, then the domain interior to gamma lies wholly on in S. ओके ओके ओके, मैं आपको गलत, मैं कॉन्वेक्स में चला गया था। देखो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। Simply connected domain S is a domain having the following property: if gamma is any simple closed contour lying in S, then the domain interior to gamma lies wholly in S. देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने सिंपल क्लोज्ड कर्व ज्वाइन कर दिया है, तो इसका जो इंटीरियर है, दैट इंटीरियर इज कंप्लीटली बिलोंग्स टू दिस डोमेन, है ना। गॉट माय पॉइंट? समझ गए ना। ये जो इंटीरियर है, दिस इंटीरियर इज कंप्लीटली लाइंग within this itself, the domain itself. Got my point? But here it will not happen. This is puncture disk. तो मैंने ये वाला स्मूथ कार बना दिया, तो इसका जो टोटल इंटीरियर है उसमें से ये वाला पोर्शन तो इसके डोमेन के अंदर है ही नहीं। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। Got my point? But here also, here actually you cannot draw this encircle it, क्योंकि आपका वो पूरा जो स्मूथ कंटूर होगा, दैट स्मूथ कंटूर विल नॉट लाई, तो उसको इनक्लोज नहीं कर पाएगा। तो जैसे आप कहीं इधर से कोई से भी ऐसे पाथ करो, छोटे छोटे गुल्ला, तो उसका जो इंटीरियर होगा, दैट इंटीरियर विल बिलोंग टू द डोमेन इटसेल्फ। ये दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट सिंपली कनेक्टेड। आप यहाँ पे बहुत सारे बना सकते हो, ये बना लिया, ये बना दिया, ऐसे इसको इनसर्कल करके बनाओ, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो नॉट सिंपली कनेक्टेड। नेक्स्ट, very important thing, what is called, we will call it complex integration. There are here not much things to worry. This is also a very good chapter, complex integration. In this lecture we shall introduce integration of complex valued functions along a directed contour. That means whenever we will talk about complex integration, there should be some path associated with it. Next, recall that a complex valued function w of real variable t belongs to a comma b to r is defined as wt equal to ut plus ivt. That is, w is from a comma b subset of r to c. The derivative of wt at a point t is defined as ddt wt
d prime dw dt equal to u prime t I v prime t, provided each of the derivatives u prime and v prime exist at t. Similarly, the integral of wt over a comma b is defined as a to b wt dt, a to b ut dt plus I a to b vt dt. Now तो सिंपली जस्ट आप दो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लोगे तो दैट डेरिवेटिव विल बी दिस थिंग. तो सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी यही रूल फॉलो होता है. दैट मीन्स समेशन इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज सम ऑफ द इंटीग्रेशन. ठीक है. स्केलर मल्टीपल का जैसे डेरिवेटिव लेने से स्केलर मल्टीपल इनटू डेरिवेटिव आ जाता है, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी वो चीज़ फॉलो अप होती है. दिस थिंग्स आर गेट्स फॉलो अप. Next, I think these things does not need much clarifications. एक और प्रूफ है. This is also something that we need to recall. That is the absolute value a to b wt dt. This is less than or equal to a to b mod of wt dt. I will not go into deep here. We will perform small integration. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ कैसे निकालेंगे. देखो लेंथ कैसे निकालेंगे. द लेंथ ये मैं बना देता हूँ. इसका इसको देख लो. इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना. द लेंथ ऑफ ए स्मूथ कर्व गामा गिवन बाय द रेंज ऑफ जेड ए टू बी टू सी इज डिफाइंड बाय एल ऑफ गामा इक्वल टू ए टू बी मॉड्यूलस के अंदर डी जेड डी टी डी टी. सो दिस इज आवर थियोरेम फॉर्मूला टू डिटरमिन लेंथ. अब जो हमने गामा वन डिफाइन किया था जेड टी इक्वल टू जेड वन प्लस टी इंटू जेड टू माइनस जेड वन फॉर जीरो लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू वन, यू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ दैट कर्व. करो डिटरमिन. समझ गए ना क्या करना होगा. यू हैव टू डिटरमिन द लेंथ. Sir, Z2 minus Z1. Z2 minus Z1 mod of Z2 minus Z1. Okay, next move to this now. For Z equal to Z0 plus R I की power t, 0 less than or equal to t less than or equal to 2 pi.
r whole into e to the power 2 pi I minus 1. देखो, सो जेड जीरो प्लस आर ई की पावर आई टी, डेरिवेटिव लोगे तो बनेगा आई आर ई की पावर आई टी। इसका आपको मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। मॉड्यूलस लोगे तो ये बनेगा आर, इसका मॉड्यूलस आई आर ई की पावर आई टी का मॉड्यूलस है आर, एंड देन 0 to 2 pi dt आप इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी 2 pi r। दैट इज एक्चुअली द सारकम वो ले रहे हैं ना हम। एक इसको याद रखना, जेड टी इक्वल टू जेड जीरो प्लस आर आई टी, इसका मतलब है यू आर कंसिडरिंग ए सर्कल, दैट सर्कल हैज सेंटर जेड जीरो एंड रेडियस आर। नाउ let S be an open set and let gamma given by the range Z A to B C be a smooth curve in S. If S to C is continuous, then the integral of f along y is defined as integration gamma fz dz equal to A to B fz t dz dt dt। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं रियल में, पैरामीटराइजेशन, पैरामीट्रिक यूज करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। और ये तो सबको आपको पता है कि गामा के रेस्पेक्ट में ऊपर हम साम का इंटीग्रेट करेंगे तो वो समेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई इसके बाहर चला जाएगा, है। एंड ऑल्सो अगर हम गामा का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस गामा के ऊपर इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस गामा का जो इंटीग्रेशन होगा वो गामा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट लेके माइनस साइन डाल देने से ही हो जाता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए गामा है, इसका इंटीग्रेट करो। Let fz equal to z minus 1 and let gamma be the curve given by zt equal to t plus it square and 0 less than or equal to t less than or equal to 1. Now clearly gamma is a smooth curve। तो इंटीग्रेशन डिफाइन है, तो डिफाइन इंटीग्रेशन करो। fz equal to z minus 1 and gamma be the curve given by z equal to t plus it square। बहुत इजी प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला यूज करो।
जाने तक का है कि ले ही लिया जाए ना। तो -1 plus 1/3 I. -1 plus 1/3 pi. Okay. So see how to solve. Gamma fz dz 0 to 1 fz t dz dt dt 0 to 1 t plus it square minus 1 देन t प्लस आई टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आई टी आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये और कुछ नहीं है। t माइनस 1 2t क्यूब डी टी प्लस आई 0 to 1 2t t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अनुस्वा आप कर रहे हो, आपका क्या आंसर आया इसका, इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरा इमेजिनरी पार्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको अभी सॉल्व करो, इसको आप अभी फिर से सॉल्व करो, फाइनल आंसर निकालो। सर -1 आया। -1 आया है, श्योर? अभी कोई गड़बड़ी तो नहीं है? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करो। fz equal to z plus 1 by z for z not equals to 0 and gamma be the upper semicircle at the origin of radius 1 z equal to e की पावर पाई आई टी। अपर सेमी सर्कल के लिए लेना है, ठीक है, मतलब t इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 और आपका आप उल्टा भी ऐसे भी ले सकते थे कि e की पावर आई टी वेयर 0 बिलोंग्स टू सॉरी t बिलोंग्स टू is equal to pi, but here we are keeping it as simple 0 to 1 और आपका ये है e की पावर पाई आई टी। इसको करो z प्लस आई जेड का।
ओके मैं बता देता हूँ, चलो इसका आंसर है इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड 0 to 1। अब एफ जेड में इसको बिठाना पड़ेगा, तो ई की पावर पाई आई टी प्लस ई की पावर माइनस आई पाई टी हो जाएगा ना, यहाँ पे 1/z है। और यू नीड टू टेक डेरिवेटिव डी जेड डी टी, तो यहाँ से पाई आई आ जाएगा और ई की पावर पाई आई टी रह जाएगा, तो यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस, ठीक है। तो देन इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट e की पावर 2 पाई टी प्लस 1, और e की पावर 2 पाई टी होता है cos 2 पाई टी प्लस आई साइन 2 पाई टी। और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके। सर ट्रिग्नोमेट्री को डाल के करना है। क्या मेरा तो 1/2 2 पाई माइनस 2 पाई। कुछ गड़बड़ी होगा, पाई आई होगा आंसर, देखना अच्छे से, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एफ जेड, यस e to the power 2 पाई आ रहा है, इसका कुछ वैल्यू पुट करना है जैसे यूनिट सर्कल जैसे। तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा बात ब्रेक हो रहा है, बताओ क्या कह रहे हो सुमित्रा, बताओ। योर इंटरनेट इज बिट, हाँ बताओ। सर e to the power 2 पाई आई का वैल्यू 1 था ना, e की पावर 2 पाई का वैल्यू 1 है, तो यूनिट सर्कल जैसे। ना 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 ना, ऐसे 1 नहीं पुट कर सकते हैं, ये टी मूव हो रहा है ना, 0 to 1 यूनिट सर्कल के ऊपर मूव हो रहा है ना। e की पावर पाई आई टी ये आपका कार्व है, दिस t is moving, so how you can put it to e की पावर 2 pi I t equal to 1 here your curve is z t equal to e की पावर pi I t, and then you take the multiply and then आप ब्रोक करो उसको cos 2 pi t प्लस sin 2 pi t, उसके बाद इंटीग्रेट करो, ऐसे करना होगा, समझे मेरी बात। यस सर। Next, the length of a contour gamma equal to this is defined by L gamma। चलो ये कोई बात नहीं, ये इरिटेटिंग है ये सब, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चलो अब देखते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1, गामा हमने गामा 1 प्लस गामा 2 हमने डिफाइन किया है। gamma 1 is just z1 t t where 0 less than or equal to t less than or equal to 1, gamma 2 is z2 t 1 plus I t minus 1 1 is less than or equal to t less than or equal to 2, clearly the contour t is piecewise smooth। तो आप क्या करोगे, दोनों में ब्रेक कर लोगे। अब इसका करो, चलो इसका तो मैंने इतना तक कर दिया है, इसमें लिखा हुआ है, अब इसको इवैल्यूएट करो, दोनों मिलके इवैल्यूएट करो क्या आ रहा है, देखो
तो -1. -1. ओके, अनुस्वा आप निकाल रहे हो? ओके, this is our one of the greatest weapon to prove theorems in complex analysis, that is called ML equality. This is called ML inequality. Suppose that f is continuous on an open set containing a contour gamma if mod fz if mod fz less than or equal to m for all z belongs to gamma, then the following inequality holds. Gamma integration fz dz that will always be less than or equal to m into l, where l is the length of gamma. तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ I will obviously omit. Suppose that f is continuous on an open set containing a contour gamma and mod fz less than or equal to m for all z belongs to the track of gamma, then the following inequality holds. The integration gamma fz dz will be always less than or equal to ml, where l is the length of the smooth of the contour. नेक्स्ट ये करो, इसी के ऊपर प्रॉब्लम है. लेट गामा बी गिवन बाय जेड टी इक्वल टू 2 e की पावर आई टी 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 2 पाई, सो दैट e की पावर z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड लेस देन इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई 3. इसको कैसे करोगे? गामा तो आपका, इसका गामा का लेंथ तो 2 है, नहीं सॉरी, गामा का लेंथ क्या है? 2 e की पावर आई टी. इसका मतलब है रेडियस है r, तो 2 पाई r, दैट मीन्स इसका रेडियस है 2, तो दैट मीन्स इट इज 4 पाई. और इसका आपको e की पावर z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का आपको सुप्रीमम निकालना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा. e की पावर z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का देखो क्या आएगा, along दैट कार्ब ओनली, मतलब 2 पाई r के ऊपर ही, मतलब 2 e की पावर आई टी के ऊपर ही निकालना पड़ेगा. देखो e की पावर z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ रहा है, से e की पावर z इज इक्वल टू एक्चुअली e की पावर x, बिकॉज e की पावर आई वाई तो 1 रहता है, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू ई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 इज, क्योंकि आपका इसका रेडियस तो 2 है ना, यहाँ से देखो, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू ई स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1. इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, तो देन मॉड जेड स्क्वायर, तो जेड इज एक्चुअली 2it, इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3. सो इट फॉलोज इंटीग्रेशन गामा e की पावर z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 पाई, सो दैट इज अल्टीमेटली 4 पाई स्क्वायर बाई 3. आई एम कीपिंग इट फॉर 2 minutes. Just carefully watch how we have solved using ML inequality. Sumitra, once you are
Understood it? Just say me okay. Okay, I will move to the next problem then. Yes, sir. Is it clear, Sumitra? सर फिर से रिपीट कीजिए, ये जो ई स्क्वायर बाई थ्री कहाँ से आया? बाई थ्री कहाँ से आया? इधर से आ गया ना, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन, दिस इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वन, सो 4 माइनस 1 इज 3, तो आपका ई की पावर जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस वन क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 3 आएगा ना, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो उससे छोटा हो जाएगा। यस सर। इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाता है ना, वही हुआ है, 3 इधर से नीचे आ गया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, इसके सारे आप सब सॉल्व करना प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे सब सॉल्यूशन भी दिया गया है, सो देयर विल बी नॉट एन इशू फॉर यू। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, जैसे चलो 3.10 को करो, सिमिलर तरीके से ही हो जाएगा। Let gamma be the circle mod z equal to 2 so that 1 by z square minus 1 dz is 4 pi less than 3। कैसे करोगे देखो, ये तो बहुत इजी है ना। mod of z square minus 1 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod of z square minus 1, तो उधर से फिर से आ जाएगा 3। ठीक है, तो 1 by z square minus 1 इज 3, और ये शायद एक एक्स्ट्रा दिया गया है, कहाँ पे है सोल्यूशन होगा, हाँ ये 4 पाई बाई 3 कैसे आ रहेगा? ये शायद आएगा बाई 3, तो आ गया मॉड जेड हो गया 2, आपका लेंथ हो गया 2, तो दिस इज 3। इसको कैसे हमने सॉल्व किया? e की पावर जेड तो नहीं, e की पावर जेड 2 इंटू 2 पाई एम एल, अच्छा 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, तो आपका लेंथ क्या आ जाएगा? आपका लेंथ है 2 पाई, मॉड जेड इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 पाई इंटू 2, जो बन जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई बाई 3 से छोटा हो जाएगा। मॉड जेड बाई 2 है ना, मॉड जेड इक्वल टू 2, तो मॉड जेड इक्वल टू 2, ये सर्कल का लेंथ क्या है, सरकमफेरेंस क्या है? सरकमफेरेंस होगा इसका 2 पाई आर, दैट मीन्स 4 पाई, तो ऊपर 4 पाई नीचे 1 बाई 3, क्योंकि 1 बाई 3 से ये 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 छोटा है, तो 4 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, अच्छा ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके, लेकिन मैं ढूंढता हूँ उसको प्रॉब्लम को। देखो ये देखो, ये इसको एक बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से तुम लोग देखना। सो दैट इफ m and n are integers,
then e 0 to 2 pi e की power I m theta e की power minus I n theta d theta 0 when m not equal to n and 2 pi when m equal to n. Evaluate z की power m and z bar की power n. z bar पता है ना, z bar का मतलब है complex conjugate where gamma is the circle given by cos t plus I sin t, that means e की power I t. And then दिस विल, ये इवेलुएट करना होगा. इसका मैं आंसर बता देता हूँ 1.13.6 का. इसका होगा आंसर z की पावर m z बार की पावर n dz that will be 2 pi I if m minus n plus 1 is equal to 0 and that will be 0 elsewhere. अगर m minus n plus 1 is equal to 0, m minus n plus 1, so that will be 2 pi I, otherwise that will be 0, the integral will be 0. okay, अभी हम प्रूफ करेंगे एक भयंकर चीज है, that is called path independence, path independence of integrals. So here the main result of this lecture is to provide conditions on the function f so that its contour integral is independent of the path joining the initial and terminal points. This result in particular helps in computing the contour integrals rather easily. Let f be a continuous function in a domain S. A function f such that f prime z equal to fz for all z belongs to S is called an antiderivative of f on S. Since f is continuous, f is analytic and hence continuous. Furthermore, any two antiderivatives of f differ only by a constant. तो आपको देखो एंटीडेरिवेटिव क्या आएगा, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन ई की पावर जेड कॉस जेड साइन जेड. तो जेड की पावर एन तो रियल का जैसा है, इधर भी वैसा ही है. जेड की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ए की पावर जेड होता है, ए की पावर जेड प्लस सी. ये कॉन्स्टेंट लगाना याद रखना, मत भूलना, ठीक है. cos z is sin z plus c and sin z is minus cos z plus c. Suppose that the function f is continuous and has an antiderivative f in domain S. If alpha beta belongs to S and gamma is a contour in S joining alpha and beta, then gamma fz dz is f beta minus f alpha. That is, the integral only depends on the endpoints and not on the choice of gamma. In particular, if gamma is a closed contour, then that will be 0. The integration will be 0. अगर f continuous हो गया and has an antiderivative f in domain S, then alpha comma beta, तो अगर आप ये अगर antiderivative अगर इसका exist करता है तो that will be simply f beta minus f alpha. और अगर closed होगा तो that will vanish. ठीक है. अगर एंटी डेरिवेटिव आपको पता है तो एंटी डेरिवेटिव का लास्ट इस पॉइंट से माइनस करके इस पॉइंट तक कर देने से ही वो हो जाता है आंसर. नेक्स्ट आई विल नॉट गो टू द, अब इसको आप कंप्यूट करो. कंप्यूट द इंटीग्रल गामा जेड स्क्वायर माइनस 2 dz वेयर गामा इज द कॉन्टूर शोन इन फिगर दिस. ये क्या है, 0 से स्टार्ट होके ऐसे घूमता हुआ स्पाइरल की तरह 3 तक जा रहा है. अब आप देखो ये आपका एफ जेड है, जेड स्क्वायर माइनस 2, इसका एंटीडेरिवेटिव क्या है आपको पता है. तो बस आप एंड पॉइंट से उसको टर्मिनल पॉइंट से उसका वैल्यू, इनिशियल पॉइंट से उसका वैल्यू माइनस कर दो, हो जाएगा.
सर 3 आंसर। क्या 3 होगा? सो दिस इज जेड क्यूब बाई 3 माइनस 3, उस पर 3 पुट करोगे तो आएगा 9 माइनस 6 इज 3, और 0 लोगे तो -2 नहीं 3 आएगा। जेड क्यूब बाई 3 2 जेड 0 to 3, हाँ 3 हो गया आंसर। Now compute the integral gamma e की पावर z dz where gamma is the part of the unit circle joining 1 to I। 1 से I तक आपका जो पार्ट पोर्शन इसको ले रहा है मूव, उतना तक ही आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर z से 1 से I तक। अब इसको करो e की पावर z dz, इसका निकालो। इनिशियल पॉइंट है आपका 1 एंड दैट इज एक्चुअली I। सर e टू द पावर I माइनस c। e to the power I माइनस e, बढ़िया, वेरी गुड। जस्ट टर्मिनल पॉइंट पे निकालना है, एंड पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे निकालना है और खत्म। अब इसको निकालो, ये कैसे हो रहा है देखो। कंप्यूट द इंटीग्रल गामा साइन जेड डी जेड, गामा इज द कॉन्टूर, पहले ऐसे मूव करेगा, ये 3 तक आएगा -3 से, ठीक है, और उसके बाद 6 + 3i तक जाएगा। तो इस गामा को गामा 1 + गामा 2 में ब्रेक करना होगा और फिर करना होगा। लगाओ, करो। सर -3 से 3 लेना है, फिर 3 to 6 + 3i। हाँ, चलो ये तो कर लोगे, बस पुट ही करना है, इसमें और कुछ है नहीं। और सीधा भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ पे तो वो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, तो एकदम लास्ट और उसी का वैल्यू रहेगा, तो ब्रेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसका करना है, कंप्यूट डी जेड बाई जेड वेयर गामा इज द कॉन्टूर इन फिगर दिस, इसका निकालो -1 to I। एल जेड आएगा, एल मॉड जेड आता है ना, तो दिस इज लॉग जेड ये कॉम्प्लेक्स वाला log -i to log i है। कॉम्प्लेक्स में log -i का वैल्यू है πi/2, -πi/2 ये आ गया, तो -πi
हाँ, ये भी बहुत तगड़ा है कंप्यूट, ये भी एक बहुत, इससे भी बहुत चीज़ें सॉल्व होगा बाद में। इसको अच्छे से देखो। कंप्यूट द इंटीग्रल गामा आर जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन डी जेड, और एन इज एन इंटीजर नॉट इक्वल टू -1 एंड गामा आर इज द सर्कल z minus z0 equal to r traversed once in the counter clockwise direction। देखो इसको कैसे करना है। सो s is c minus z0 है, then s is a domain and the function z minus z0 n is continuous throughout s। Moreover, z minus z0 by n is actually derivative of the z minus z0 की power n plus 1 by n plus 1, and now gamma r is actually closed, so that is why, oh sorry, so that is why gamma r is a closed contour that lies in S। we reduce that z minus z0 की power n dz equal to 0 when n is not equal to -1, और z equal to n equal to -1 कब होगा तो तब हम बाद में देखेंगे। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, इसको जस्ट आप पढ़ो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let a be a continuous function in a domain S, then the following statements are equivalent with one another। if has an antiderivative in S for any closed path gamma closed contour gamma in S, gamma से fz इंटीग्रेशन लोगे तो that will be 0, and if gamma 1 and gamma 2 are contours in S joining alpha and beta, then there will be path independency। that means fz dz or gamma 2 fz dz, that will be any for any two curves। ये तो अब हमें पता चल गया ना कि हम बस टर्मिनल से ही माइनस कर रहे हैं। The contour integrals of f are independent of paths in S, that is if alpha beta belongs to S। प्रूफ भी बहुत इजी है, आप चाहे तो कभी भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारे समझ में आ गया ना। एक ही तरीके के चीज में घुमा फिरा के, बस 2 और 3 तो बहुत इजी है, बस घुमा फिरा के एक ही चीज बोला गया है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देख लेना प्रूफ इसमें दिया गया है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द नोट, वेरी बेसिक प्रूफ्स, नीड नॉट टू डिस्कस देम विथ मच। अच्छा एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करो। let gamma equal to gamma 1 plus gamma 2 where gamma 1 and gamma 2 respectively are given by z1 t equal to ti, z2 t equal to t plus I, t belongs to 0, 1। furthermore let fz equal to y minus x plus 3i x square। now determine gamma fz dz।
देखो इसको कैसे होगा, देखो एफ जेड डी जेड 0 to 1, 0 to 1 एफ जेड 1 टी जेड डी जेड डी टी एंड 0 to 1 एफ जेड 2 डी जेड डी टी। आपके पास दो गामा 1 एंड गामा 2 आपके दो कार्ड्स हैं, तो गामा 1 गामा 2 पे आपने इसको ब्रेक कर दिया। तो Z12 तो टी आई है, तो एफ जेड 1 टी करोगे, एफ जेड आपका y माइनस एक्स, तो y आपका क्या है यहाँ पे, x तो 0 है, तो y आपका है टी टी, तो यहाँ से आपका बन गया टी आई डी टी। सिमिलरली यहाँ से आपका बना 0 to 1 1 माइनस टी प्लस 3i स्क्वायर टी डी टी, तो दैट इज एक्चुअली हाफ प्लस 3i/2। नाउ you consider gamma 3, this gamma 3 is z3t equal to I plus t1 plus I, ये क्या हो गया, z1t plus z2t का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। नाउ इसका इन दोनों का सम ले लिया हमने, देखा आपने, तो जैसे ही सम ले लिया, देन फॉर द सेम फंक्शन f, सो नाउ दिस गामा 3 एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2i। नाउ ये दोनों इंटीग्रेशन जो है, अब देखिए सेम नहीं है, दैट मीन्स ऑल्दो गामा 3 एंड गामा 1 प्लस गामा 2, गामा एंड गामा 3 ऑल्दो हैव सेम एंड पॉइंट्स, द इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। तो इंटीग्रेशन डिपेंडेंट अपॉन पाथ है, इसका मतलब क्या है, पाथ डिपेंडेंस का मतलब क्या आ गया, गामा गामा 3 हैव द सेम एंड पॉइंट्स, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन सेम नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसका एंटीडेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है ना कि एंटीडेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट किया तो ये कोई भी गामा 1 गामा 2 के लिए इसका इंटीग्रेशन सेम होगा। यस सर। चलो अब इधर से हम इसमें कितने पेजेस से देखते हैं, तो हम आज कोशी-गुरसट थ्योरम में ही खत्म करेंगे आज का क्लास। Let C be a piecewise smooth, simple closed curve that bounds a domain D in the complex plane. Let P and Q be the two real valued function. ग्रीन्स थ्योरम तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। P dy माइनस Q dx, D del P del x प्लस del K del y dx dy। यस सर, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, बढ़िया। प्रूफ तो नहीं करेंगे हम। चलो ये आपका आ गया कोशी-गुरसट थ्योरम। कोशी-गुरसट थ्योरम का मतलब है अब आएगा एनालिटिक का मजा। इफ एफ इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन एस एंड गामा इज एनी सिंपल क्लोज्ड रेक्टिफाइबल कॉन्टूर इन एस, देन गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स कोई भी अगर आपका एनालिटिक फंक्शन है और आपका उस डोमेन में आपका जो एस है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, उसमें एफ एनालिटिक है और गामा
और गामा इज एनी सिंपल क्लोज रेक्टिफाइबल कंटूर इन एस, देन गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। पूरा इसको थ्योरम को रट्टा मार के रखो। क्या थ्योरम है इसका? एफ अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो और कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर आपका वो गामा जो है दैट इज अ सिंपल क्लोज रेक्टिफाइबल कंटूर, सिंपल क्लोज रेक्टिफाइबल कंटूर, सिंपल क्लोज रेक्टिफाइबल कंटूर, ऐसे let f be any analytic function in a simply connected domain S such that it contains the curve gamma which is a simple closed rectifiable contour, then gamma fz dz integration will be 0. So this is our Cauchy-Gaussian theorem. और we sometimes it call, जैसे कि ये ऐसे ब्रेक करके कर रहे हैं कुछ, हम प्रूफ तो जो ज़बरदस्ती सॉल्व नहीं करेंगे, बस लगता है एमएल इनइक्वालिटी वगैरह कुछ यूज होता है। ओके, आई विल नॉट प्रूव इट। आप देख रहे हो प्रूफ कितना खतरनाक है। चलो अब करो। इवेलुएट e की पावर z by z square minus 16 dz गामा इज द सर्कल mod z इक्वल टू 2 ट्रावर्स्ड वंस काउंटर क्लॉकवाइज। एक बार आपने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रावर्स किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? ez by z स्क्वायर माइनस 16। तो देखो z स्क्वायर माइनस 16, एनालिटिसिटी कौन से पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? z स्क्वायर जब 16 के बराबर होगा, दैट मीन्स +4 -4। अब +4 -4 क्या, +4 -4 क्या इस mod z इक्वल टू 2 के अंदर लाई कर रहा है? द आंसर इज नो। तो आंसर क्या आएगा? एनालिटिक एवरीवेयर ऑन द डोमेन D, सो देयरफॉर यूजिंग Cauchy-Gaussian थ्योरम द आंसर विल बी 0। जैसे कि मान लो ये एफ जेड इक्वल टू ई जेड स्क्वायर, इसके बाद क्या है? चलो डिफॉर्मेशन थ्योरम तो कुछ इसमें है नहीं करने के लिए। चलो अभी डिफॉर्मेशन थ्योरम हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है, डिफॉर्मेशन थ्योरम हमें ज़रूरत नहीं होगा। अच्छा ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद करके रखो। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, डिफॉर्मेशन थ्योरम भी डिस्कस कर देते हैं। एक ही इसका थ्योरम है शायद, लगता है। अच्छा ये एक है, जैसे इसमें डिफॉर्मेशन थ्योरम में क्या होता है देखो, मतलब कोई भी कार्व हो, जो कार्व क्लोज्ड है, आपको उसका एक्सप्रेशन नहीं पता, लेकिन आपको कोई उसका वेल नोन कार्व जो आपको पता है उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्रेस करके फिर आप उसका कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशन। गामा 1 के ऊपर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, गामा 2 के पास एफ जेड डी जेड, दैट विल बी इक्वल। जैसे कैसे होगा देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये जो कार्व है, दिस कार्व यू डू नॉट नो, सो दिस कार्व, इसका आपका देखो मैं इसको एग्जाम्पल के हिसाब से बता देता हूँ। देखो 1 by z square minus 1 by z square minus 1 dz with the contour gamma is given in this figure। तो आप इसका z square minus 1, इसका प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है? z square इक्वल टू 1 होने पे। z square इक्वल टू 1 होने का मतलब है z इक्वल टू +1 और -1। तो ये जो कंटूर है, दैट कंटूर इज नॉट लाइंग इन द inside the contour, inside the contour, right? This point only this -1 is lying। तो आप इस -1 को एक सर्कल से अंडरस्कोर कर दो। तो 1 by z square minus 1 dz का डिफॉर्मेशन थ्योरम ये कहता है कि दिस कर्व के ऊपर इसका इंटीग्रेशन इस बड़ा कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन के इक्वल रहेगा। इसके बाद क्या करना है आपका, ये आएगा। अच्छा एक थ्योरम है, इसको आप याद रखो।
व्हाट इज दिस थ्योरम? dz by z minus 1 गामा के अंदर अगर a लाई करता है देन दैट आंसर इज 2 पाई आई. अगर गामा के अंदर a नहीं लाई करता है दैट मीन्स द आंसर इज 0, जो यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा. इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे. dz by z स्क्वायर माइनस 1 गामा आपका वेल नोन सर्कल है. पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो 1 by z माइनस 1 1 by z प्लस 1 की कॉम्बिनेशन के हिसाब से, एंड देन अब वो सीधा सा वो फॉर्मूला लगा दो. सर क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला ये है ना? अरे बाद में कौसी इंटीग्रल फॉर्मूला आएगा, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया कौसी इंटीग्रल फॉर्मूला. तो यहाँ पे 1 by 2z माइनस 1 1 by 2z प्लस 1 इस पे ब्रेक हो जाएगा. तो दिस इज 1 by z माइनस 1. ये तो आपका हो गया कॉसी गोडसेट फॉर्मूला से 1 by 2z माइनस 1. ये तो एनालिटिक हो गया. तो गामा के हिसाब से ये 0 और माइनस 1 by 2z प्लस 1 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. 1 by z माइनस a, अगर a गामा के अंदर होता है तो इसका आंसर होता है 2 पाई आई. तो 1 by 2 2 पाई आई, तो आंसर आ गया माइनस पाई आई. और इसको सिमिलरली लिनियर कॉम्बिनेशन लेके भी कर सकते हो. ठीक है, इसको ट्राई करो. फाइंड 5z माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड डी जेड वेयर गामा इज गिवन हेयर. ये आपका गामा है, जो 0 है 1 है. तो इसको कैसे करोगे? 0 और गामा 1 एक ये ले लोगे, गामा 2 ये ले लोगे. उसके बाद इसका मतलब क्या है, आप छोटे छोटे उसका फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ले लोगे, हो जाएगा आंसर. करो इसका आंसर निकालो. देखो जेड स्क्वायर माइनस जेड में जो प्रॉब्लम है उधर आपका इसके साथ साथ रेसिड्यू थ्योरम भी लगा सकते हैं. वो सब हमने डिस्कस नहीं किया ना सुमित्रा भी. हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है उसी को यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं. इसमें क्या करना है, 0 को एन सर्कल करके एक सर्कल बनाओ, 1 को एन सर्कल करके एक सर्कल बनाओ, और फिर गामा 1 गामा 2 के हिसाब से इंटीग्रेशन निकाल दो. पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, इस प्रॉब्लम को करो. ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है. ठीक है, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है 5z माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड के.
सर 10 पाई आई। 10 पाई आई, वाह बढ़िया। 5z माइनस 2 बाई z माइनस 1 गामा 1 2 बाई 2z, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, 3 बाई z माइनस 1 आया, फिर गामा 2 जिसका अंदर 1 लाई कर रहा है, देन 2 बाई z 3 बाई z माइनस 1 dz किया, तो इसको भी सेम पार्शियल फ्रैक्शन में ही ब्रेक किया। देखो 2 बाई जेड ये जीरो के अंदर लाई कर रहा है, तो जीरो इस 2 बाई जेड का सिंगुलरिटी है जे जीरो, तो ये 2 पाई आई आ जाएगा, 2 इंटू 2 पाई आर, ये तो 3 जेड बाई माइनस 1 ये एनालिटिक फंक्शन है इसके अंदर इसके अंदर, और ये तो फिर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली इधर से आपका 3 इंटू 2 पाई आई आ जाएगा, टू बाई जेड प्लस 3 बाई जेड माइनस 1 डी जेड, 2 इंटू 2 पाई आई प्लस 0 इंटू 3 2 पाई आई, तो ये आपका आंसर आ गया 10 पाई आई। नाउ लेट गामा बी ए सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर दैट contains the distinct point z1 z2 zn in its interior, we shall show that dz by z minus 1 z minus 2 into z minus zn equal to 0। तो ये बस सीधा सीधा आपका एप्लीकेशन है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का। ये इसमें क्या है ये समझ में आया? इसमें बस इसको बस आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, उसके बाद वो प्रूफ एकदम स्ट्रेट कट ही है, मतलब 2 पाई आई विज, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो। ओके सुमित्रा, आई थिंक टुडे इट इज सफिशिएंट, आई विल नॉट लाइक ज़्यादा बोझ नहीं दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू सुमित्रा, थैंक यू वेरी मच। नोट तो हमने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है, तो ऐसे मतलब कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके थैंक यू वेरी मच सुमित्रा फॉर ज्वाइनिंग, बाय।